नमस्ते एंड वेलकम बैक टू इंडियन एंजल्स। आज का एपिसोड है भरा हुआ इनोवेशन और धमाल से। इन रिकांस एब्सेंस क्या हमारे पिचर्स कन्विंस कर पाएंगे द प्रेजेंट 5 एंजल्स? सबसे पहले है बेयरवेयर, एक वुमेन्स इनरवेयर ब्रांड आई यात्रा हॉलिडेज, जहां यूजर्स को मिलती है अपने हॉलिडेज को कस्टमाइज करने का मौका। ट्रिगो इलेक्ट्रिक, जो बनाती है 2 व्हीलर व्हीकल्स डिलीवरी बाइक अफोर्डेबल एंड कार्बन फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बिजनेस वेंचर। खतरानी ब्रदर्स बीइंग मेन प्रेजेंट करते हैं एक ब्रांड जो विमेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। We are nervous for sure. थोड़ी nervousness तो है, but we are very excited. We were waiting for this day, and for a small business like us, it's a great opportunity where we can pitch our ideas to the biggest people in the industry. And yeah, we are very excited. We can't wait for it. Hello, angels. Hello. Imagine a world where comfort meets confidence for every woman. There was a time when women used to order intimate wear only when it was a necessity. But today, it's a source of confidence for every woman. But there's more to it. Every day, a woman gets up with a dilemma. What outfit should I wear today? But there's a bigger dilemma. What should I wear inside that outfit? That's where we come in. In the world of fast fashion, where fashion is evolving every other day, but the intimate wear hasn't evolved since decades. So, angels, introducing Bearwear, where comfort meets confidence. My name is Jay Kathrani. I'm the founder of Bearwear brand. I'm Jugal Kathrani. I'm the co-founder of Bearwear brand. We are both brothers. Before we start that, we'd like to call our Bearwear tribe and actually showcase how our product looks on a woman. Can we have the Bearwear tribe, please? This is Sanchita. She's wearing our product, Nipple Pasties, and she's not wearing anything inside. Doesn't it feel lovely? Thank you. Thank you, Sanchita. Thank you. We have Ananya here. She's wearing a big size body tape and she's also not wearing inside anything inside. Thank you. Thanks, Ananya. We have one last person. She's Alicia. She's wearing Bearwear body tape precut strips. This product is only made by Bearwear and we're the only one in the country to have this product. Thank you, Alicia. Thank you. Okay. हम लोग के 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं. First is body tape for women. Second is nipple pasties. And third is pre-cut strips. So now, हमारे ये प्रोडक्ट से ये फायदा हो गया है कि now women can shape their chest according to their outfit and their needs. It's like creating your own bra depending on what you're wearing. So we call ourselves a solution wear company for women, where we're trying to find solutions. जो intimate lingerie इतने सालों से चल रही है और आजकल इतने सारे जो अलग अलग टाइप के अटायर्स आ गए हैं, ड्रेसेस आ गए, सो कई बार हमको बैकलेस पहनना पड़ता है, कई बार हम लोग डीप नेक पहनते हैं, वुमेन पहनते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे ब्रा विजिबिलिटी, डिस्कम्फर्ट, डिफरेंट कप साइजेस, रॉन्ग साइजेस, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. सो अभी इसीलिए फिर उसमें हम आते हैं बेयरवेयर एज अ बॉडी टेप, एज अ निपल पेस्टीज ब्रांड. हमारे यूएसपी ऐसे है प्रोडक्ट्स के कि हमारा प्रोडक्ट ब्रीदेबल है, इट इज स्वेट प्रूफ, इट इज वाटर प्रूफ, इट स्टेज फॉर 8 hours minimum, and it works for all cup sizes from A to J plus. There are a few other brands in the market which are not as well established, but they don't support women's breast as good as we do, and that is something that not we are saying, but we are saying, but our customers are saying. We have reached out to 5,000 plus customers until now. Dear angels, we are seeking for 1.6 crores for 6.7% of equity at a valuation for 26.7 crores. उनके कॉन्फिडेंट पिच ने एंजल्स में एक खास माहौल बनाया है. तो कैसे आप men, how did you men come together and design something? How did you understand the difficulties or the need for such a product? मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था. वो एक शादी में गई थी दिल्ली, वेयर उसकी एक फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था और उन्होंने ये पहना था. तो एज बॉयज हमें कोई नॉलेज नहीं था, हमें कोई आइडिया नहीं था और ना ही हमने उसको सीरियसली लिया. बट देन व्हेन आई डीप डाउन, मैंने जब इसमें रिसर्च किया, देन आई रियलाइज कि एक मार्केट में बहुत बड़ा गैप है एंड वुमेन आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू ब्रा. क्या आप इसके बारे में ये बता सकते हो कि with this measurement how many times people can actually, A woman depending on the size, as in I'm 15 to 25 times depending upon how she is using it. sure. आप सैंपल्स दिखा सकते हैं? Yes, Yes, ma'am, we'd love to.
How is the equity distributed? Eyewear है ना. I own 90%. I own 10%. 10%. What would you say would be the key success factors for this business? So sir, see, Name 3 quick key success factors. first, our quality of the product which stands out from all other competitors. Second, our marketing and packaging and branding. Third, the affordability and our understanding of the market. तो आप क्वालिटी के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं, एक बार वो प्रोसेस समझाइए कि आपकी सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट कैसी है. So right now we are importing this from China because वहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है. But we have already हमारा R&D already स्टार्ट हो चुका है. हमारा फर्स्ट बैच ऑफ निपल कवर्स ऑलरेडी आ चुका है. रेवेन्यू प्रोजेक्शन है वो काफी अग्रेसिव है. आपने अभी स्टार्ट किया है और आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आप 11 करोड़ तक ले जाने वाले हैं. उसके बाद इट्स गोइंग टू बी 40 समथिंग. तो इतना स्टीप कैसे हुआ? सर हमने ये जैन में लॉन्च किया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम ये मार्केट और ये प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते हैं. हमने एक लिल फ्ली मार्केट में लॉन्च किया था, जहाँ पे हमने फर्स्ट 3 दिन में हमने 3.3 लाख का सेल किया था. तो तब हमें रियलाइज हुआ कि ये मार्केट की नीड है. और एक और बेनिफिट हुआ, हमने वो फ्ली मार्केट में मोर देन 5,000 कस्टमर्स से इंटरैक्शंस भी किया. ओवरऑल सेल्स नंबर्स कितना था? बताओ. टिल डेट 22 लाख. सर हम लोग का लास्ट मंथ सेल्स था 5.3 लाख के आसपास. उसके पहले हमारा सेल था 3.5 लाख के आसपास और उसके पहले वाले मंथ में 2.3 या 2.4 के आसपास. तो टेल मी कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बहुत अग्रेसिव लग रहे हैं. तो Right. इसे आप एक्सप्लेन कीजिए. मैम I'll explain you. Right now we are available. हम अभी Amazon में अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट को चालू है 40 डेज हुए. By the end of next month हम लोग नायका, टीरा ब्यूटी, मिंत्रा ब्यूटी, आजियो, शॉपस्टॉप ये और 5 मार्केट प्लेसेस में लाइव होने वाले हैं. अभी आपका मार्जिन बहुत थिन है, बिकॉज आप 300 से 400 रुपए तो मार्केटिंग में खर्च कर रहे हो और 400 रुपए का आपका ईच प्रोडक्ट बच रहा है. सो ऑलमोस्ट लाइक 0% मार्जिन. So वो हमने एवरेज लगाया है वेबसाइट और Amazon का. सारे एंजल्स ने बोला मेरे को वो समझना है, उसको थोड़ा नंबर पे बात करते हैं. अगर आप कह रहे हो कि आप 10 करोड़ का रेवेन्यू करोगे ना, तो 10 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए आपको कितने SKU बेचने पड़ेंगे? सर हमको 10 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए हमारा अगर 1000 रुपए हमारा उससे और ज्यादा है, 1000 रुपए हम मान लोग लेते हैं. ऑर्डर वैल्यू पकड़ते हैं. 1 लाख यूनिट हमको बेचने में. 1 लाख यूनिट, 1 लाख मानता हूं मैं सेल्स फ्लैट हो आपकी, है ना? तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12, 8,500 यूनिट आपको बेचना पड़ेगा या 8,600 यूनिट बेचना पड़ेगा. जी. अभी आपका सेल कितना है पर मंथ अगस्त में? हाउ मेनी यूनिट्स? 500. 500 यूनिट. तो आप कह रहे हो 500 से आप 16 गुना चले जाओगे जी. बाय 1 अप्रैल. ठीक है, तब आप अगले साल का रेवेन्यू टारगेट मीट कर पाओगे. अगर 10 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट आपका यही है ना अगले So साल 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर Next year. एंडेड. कि 16 गुना कंपनी कैसे बढ़ाओगे पहले, है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे. बिकॉज ये प्रोडक्ट अगर बिकने लग गया और कस्टमर को आप सही टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाए, तो योर ब्रांड विल गो फॉर अ टॉस. सर मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है, हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं 110%. वो हमारा एंड गोल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट जब तक हम वो इंडिया में अचीव 100% तरीके से नहीं कर सकते, तब तक हम इंपोर्ट करेंगे. खतरानी ब्रदर्स की एग्रेसिव प्रोजेक्शंस और अनक्लियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ने क्या बढ़ाई है उनकी प्रॉब्लम्स. And I love the passion with which you guys are doing the business. Unfortunately, मुझे इतना export इस market के बारे में मालूम नहीं है. There might be bigger players, there might be established brands, there might not be. I don't know. Since it's very new to me and because of this reason, I will not be able to be your angel. मेरा ये मानना है जिसमें जज्बा, जुनून और जिगर होता है, जिसको मैं JQ बोलता हूँ, वही असली एंटरप्रेन्योर होता है. मैं आपका एंजल बनना चाहता हूँ, पर मेरे 2 कंडीशन है. आपका इक्विटी स्टेक इस फर्म में हैज टू गो अप. एट द बेयर मिनिमम यू हैव टू ओन 25% ऑफ द फर्म, बिकॉज द 2 of you vibe it well. So 2 founders vibing together मचा देते हैं. तो आपको कंपनी में 25% स्टेक मिनिमम आप दोनों को करना पड़ेगा सॉल्व कि he has 25% स्टेक इन द कंपनी. आई एम विलिंग टू ऑफर 25 लाख रुपीस फॉर 15% इन द कंपनी. दिस इज माय ऑफर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर सर. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आप दोनों से. आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. सो मेरा ऑफर सिमिलर है. 25 लाख फॉर 15% ऑफ योर इक्विटी राइट नाउ. मैं आपकी एंजल बनना चाहती हूँ. सो मैं आपको 30 लाख ऑफर करना चाहती हूँ फॉर 30% ऑफ द कंपनी. इन एडिशन टू दिस, बिकॉज हम लोग 16x ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यू विल नीड मोर कैपिटल. सो 20 lakhs एज डेट एट 12% interest. So I'll give you the valuation of
1.5 crores and I'm willing to offer you 30 lakhs. All due respect, we are very grateful for giving So, this like, offer. we are very happy that all of you think that it is worth investing in. But we don't want to go less than a 15 crore valuation. We are already doing 1 CR run rate by March and we'll do it without any... आप 15x मल्टीप्लायर मांग रहे हो. 15 करोड़ का वैल्यूएशन मैं नहीं कर सकता, ठीक है. द लास्ट ऑफर दैट आई कैन मेक, एंड आई एम मेकिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड कुणाल, बोथ ऑफ अस टुगेदर. द लास्ट ऑफर दैट आई एम गोइंग टू मेक इज 35 lakhs in equity infusion in your company, 15 lakhs in debt. That we will give you at 9%, not 12%, है ना. पर जो 35 लाख रुपए आपको देंगे हम कंपनी में, ठीक है, वो हमको 15% के स्टेक के लिए चाहिए. ठीक तो है. मेरा भी रिवाइज्ड ऑफर है अब, ठीक है. देखो कंडीशन सेम है, 50-50% इक्विटी. सेकंड कंडीशन 30% ऑफ ओवरऑल शेयर. बट इंस्टेड ऑफ 35 lakhs, 30 and 20 lakhs जो मैं अलग अलग ऑफर कर रही थी, ऑल 50 lakhs फॉर 30% of your company. Definitely, we would love to have your expertise, but ma'am, 30% कैसे हम दे दें? दो या फिर Wait. I have an offer too. I'll give you the same valuation as them. And I'll put in 50 lakhs. And I'll give you a 20 lakh line of credit for 12%. We need funds, but we don't want to dilute more than 5 to 6%. I hope you understand why. I completely respect, ठीक है. जो फाउंडर अपनी इक्विटी की इज्जत करता है ना, वो एक्चुअल में फाउंडर होता है. फुल रिस्पेक्ट एंड सल्यूट टू यू गाइस. अभी हम साथ में काम नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर वी विल वर्क टुगेदर. मुझे ऐसा लगता है आप ब्रांड बनाओगे, आपको अभी थोड़ा मैं आपका एंजल नहीं बन सकता. आई साइन ऑफ. अभी हम लोग आपका एंजल नहीं बन पाएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ नो मेरिट इन यू गाइस. प्रोडक्ट कैटेगरी सब में दम है, वैल्यूएशन समझ नहीं आ रहा है, बट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई थिंक आप कुछ अच्छा करोगे. थैंक यू गाइस. बाय बाय. Thank you for your time. लो वैल्यूएशन के चलते खतरानी ब्रदर्स ने रिजेक्ट किया एंजल्स के ऑफर्स. वी विश देम ऑल द बेस्ट. वो लोगों ने काफी सारे एंजल्स ने हमें काफी टिप्स दिए कि हम स्केल कैसे कर सकते हैं, हमारा सेल्स फनल कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग चैनल क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. तो वो तो हमने डेफिनेटली सीखा है. पैसा नहीं मिला, बट पैसे से ज्यादा बहुत कुछ मिला. अगर आप भी जय और जुगल की कंपनी बेयरवेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन हेड ओवर टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट indianangels.com. इंश्योरेंस देखो है तो सुकून है. बढ़ते इंडिया का हर सपना पूरा कर रहे हैं हम. इंश्योरेंस देखो, बढ़ते इंडिया का भरोसा. Tag Kumkumadi face wash करे dark spots को end and gives your skin a radiant and youthful glow. Always young, always glowing. Timeless weaves for timeless moments. Join the sari revolution. Brought to the world by Shobhitam. हमारे दूसरे पिक्चर है प्रीतीश एंड ऐश्वर्य, फाउंडर ऑफ आई यात्रा हॉलिडेज. एक प्लेटफॉर्म जो आपको देती है अपने हॉलिडेज को कस्टमाइज करने का पूरा कंट्रोल. मोस्टली हमारी स्ट्रैटेजी एक्चुअली कोई पर्टिकुलर एंजल के लिए नहीं है, बिकॉज वी आर इन अ वेरी स्टार्टअप स्टेज ऑफ आवर बिजनेस. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें सपोर्ट हर एंजल से मिले. So every angel will teach us something. Every angel is angel for us. अभी हमारा स्टार्टअप जिस स्टेज पे है, उस स्टेज पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द फंडिंग. द प्रोडक्ट इज ऑन द बीटा वर्जन एंड उसको आगे ले जाने के लिए, उसमें एनर्जी डालने के लिए, उसको फ्यूल अप करने के लिए हमें एंजल्स का सपोर्ट चाहिए. Hello angels. Hello angels. My name is Pritish. And I'm Aishwarya. And we are the founders of iYatra Holidays. Redefining the travel planning. So the travel industry is around $2.3 trillion worldwide. And the global travel industry, which has the online package industry, it is around $466 billion. And the Indian market shares around $16.9 billion. And it is growing at the pace of 10.5% annually. But angels, आज भी हॉलिडे पैकेज की प्लानिंग और बुकिंग वैसे ही होती है जैसे 10 साल पहले होती थी. वही किसी हॉलिडे कंपनी या ट्रैवल एजेंट को अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करना और फिर वेट करना कि कोई कोटेशन आएगा एंड फिर शुरू होता है मॉडिफिकेशंस. यही नहीं, आज भी अगर आपको किसी ऑड आवर्स में
कोई हॉलीडे पैकेज की प्लानिंग या बुकिंग करनी हो, या फिर फॉर दैट मैटर आए हुए पैकेज में कोई मॉडिफिकेशन कराना हो, तो यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बिजनेस आवर। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं हम आई यात्रा हॉलीडेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे बिना किसी पे डिपेंड हुए खुद से अपना पैकेज डिजाइन और बुक कर सकता है। एंजल्स हमारा प्रोडक्ट अभी है अल्फा स्टेज में। इसे पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और इसमें जान डालने के लिए हमें चाहिए आपका प्रीशियस सपोर्ट और 60 लाख रुपीस फॉर 6% ऑफ इक्विटी। लेट्स मेक इट ह्यूज टुगेदर। थैंक यू। क्या ये नया तरीका और नई सोच उनको एंजल्स के दिलों तक पहुंचा पाएगा? आपने कहा था किसी भी टाइम पर हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, तो अगर मैं 7 दिन के ट्रिप पे गई हूँ तो मैं चौथे दिन पे चेंज कर सकती हूँ? मैम दिस इज फॉर बुकिंग स्टेज, जब आप बुक करना चाहते हो। इससे पहले कि हम आगे बिजनेस के बारे में समझे, हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आपको ये आइडिया आया? So we both are friends. We are college friends. हमने hospitality में graduation किया है, and then I have worked with various startups. The last startup I was working with was into the travel segment. Worked with them for more than 5 years. तो आजकल काफी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी जहाँ पे आप अपना ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं। आपके मॉडल में क्या अलग है? जनरली क्या होता है कि वी सिलेक्ट अ होटल, एक ट्रांसफर सिलेक्ट किया, एक साइट सीइंग सिलेक्ट किया, तो अलग अलग बन के आता है, उसका अलग अलग पे होता है और उसके बाद आप कुछ चेंज भी नहीं करा सकते हैं उसको। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग एक आइटिनरी आपके लिए डिजाइन करके दे रहे हैं, which would be a common itinerary, and then you can modify your itinerary according to your taste and budget. So you can do it. आइटनरी तो अभी फिलहाल कर सकते हैं बाकी वेबसाइट्स में। तो so मैम जैसे मैं जयपुर जाना चाह रहा हूँ 4 दिन के लिए मेरे फैमिली के साथ, तो क्या क्या आएगा फिर आपके ट्रैवल में ऑप्शंस में? if you want I can show a demo of the app. Sure. Please. So sir, this is on the alpha stage as of now. कुछ चीजें इसमें स्क्रैची होंगी because it is still on the testing phase. So let me show you. You came on this website. यहाँ पे already there are lot many things. जहाँ पे वेरियस डेस्टिनेशंस के आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके सजेशंस आ रहे हैं विद द मूड कि आपको फैमिली हॉलीडे पे जाना है या फ्रेंड्स के साथ जाना है। यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग एंड देन यू विल रीच देयर। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे हमारा एक सर्च बार है, यहाँ पे आके लेट्स सपोज वी एंटर दुबई। यहाँ पे आते ही उसका एक हमें बेसिक इंट्रोडक्शन भी मिला। सो लेट्स सपोज वी सेलेक्टेड अक्टूबर मंथ, फिर आपने अपनी ट्रैवल डेट सेलेक्ट की, start date. So let's say we select 5 to 8 days, and then what is the mood? So let's say I'm traveling with my friends. हमने वो select किया. How many adults? We entered that. आपका यूजर इंटरफेस काफी क्लीन है, क्लीन एंड Thank you, ma'am. आई यात्रा का जीरो रेवेन्यू पर होना उनके लिए एक चैलेंज भरा फेज हो सकता है। क्या एंजल्स ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? ये आपने कितने दिनों पहले शुरू करी है स्टार्टअप? Ma'am, we originally started off in 2019, around December. फिर immediately COVID आ गया, then we had to pause it. रीस्टार्ट कब करी है? 2022 November we restarted with this plan. एंड ये रेवेन्यू स्टेज पे है या नहीं? This product is not in the revenue stage. Then what is But the revenue we are doing it as a conventional travel agency, which we explained in earlier. So I know it may sound early, but Angels मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे नहीं लगता आप प्रिपेयर्ड हैं। आपकी जो ऐप है वो बहुत पैची है। आप इतने टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, बट उसमें डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, और मार्केट में ये ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं आपकी एंजल नहीं बन सकूंगी, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड you can continue your pitch to other angels. Thank you. आप 2019 में आपने काम स्टार्ट किया था, 2 साल कोविड आए, तो कोविड में आपने 2 साल क्या किया? We opened a restaurant. वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, it was a small QSR. Then we expanded to another restaurant, so we had 2 restaurants. उसके बाद में once that grew up और अभी वो रेस्टोरेंट्स हैं आपके? सर अभी वो नहीं है, उसको हमने हैंड ओवर कर दिया। किसको हैंड ओवर कर दिया? वी ऑनबोर्डेड अनदर पार्टनर्स एंड सोल्ड आउट। आपका इक्विटी स्टेक है उसमें? नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। नहीं है आपका? तो कब बेचा आपने? 2022 सितंबर। कितने रुपए में?
सर 9 lakhs. 9 lakhs में अभी जब आपसे आपने ये वापस स्टार्ट किया है अगस्त सितंबर से 2022 से, तो तब से अभी तक क्या ट्रैक्शन आया है? Sir, we have sold packages to more than 500 travelers. 500 लोगों को आपने पैकेज बेचा है, तो कहाँ से आए वो 500 कस्टमर? सर मार्केटिंग के थ्रू सोशल मीडिया पे और गूगल पे मार्केटिंग हमने कर रखी है, वहाँ से करते हैं. तो 500 अभी जो आपने पैकेज बेचा है वो आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बेचा है? नॉट दिस प्लेटफॉर्म सर. कन्वेंशनल एक हमारी जो दूसरी वेबसाइट है. सो अभी इफ यू कैन सी हमारा मेन डोमेन पे भी अभी ये लाइव हमने नहीं किया है. तो मेन डोमेन इज नॉर्मल वेबसाइट जहाँ से होता है. एक तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड में हूँ. इस फील्ड में रीजनल प्लेयर्स का मेरे को लगता है स्कोप बहुत कम है, और जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी SEO वगैरह सब कुछ अपना ऑप्टिमाइज कर रखा है. और क्या कि आपका जो वैल्यूएशन आस्क है मेरे को लगता है वो रियलिटी से कोसों दूर है. मैं आपका इंजन नहीं बन सकता. आपके और एक टूर कंपनी में क्या फर्क है? जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो जिसका हमने रेवेन्यू बताया, जो हमने प्रोजेक्शंस दिए, यस वहाँ तक हमारे और किसी और टूर कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है. बट यहाँ से डिफरेंस आएगा, एंड दैट वाज द आइडिया. मोस्ट ऑफ दी इवन दी सम ऑफ दी बिग ब्रांड्स, अगर आप उसमें कभी भी जाके विजिट करोगे फॉर दी हॉलीडे पैकेज, नॉट फॉर दी होटल बुकिंग, नॉट फॉर दी फ्लाइट बुकिंग, बट हॉलीडे पैकेज में आप जब भी इंक्वायरी डालते हो, वहाँ पे आपके पास इमीडिएटली एक मैसेज आता है, आवर टीम विल गेट बैक टू यू. अब ये गेट बैक टू यू का जो टैक्ट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम. that is because holiday bookings are extremely personalized. राइट. या तो मैं खुद अपना हॉलीडे रिसर्च करके डिजाइन करना चाहूंगा, और अगर मेरे को एक ट्रेडिशनल टूर पैकेज के साथ जाना है तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, थॉमस कुक्स ऑफ द वर्ल्ड, SOTCs ऑफ द वर्ल्ड, यात्राज ऑफ द वर्ल्ड. जब वो मैसेज आता है वो समझना चाहते कि क्या है, एंड देन दे कम बैक टू विद कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स. सर बट उसी को सॉल्व करने के लिए वी आर मेकिंग इट अ पर्सनलाइज्ड वेबसाइट. तो ना हमें जबरदस्ती एक प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना, और वो भी इतनी इल-कुक्ड तरीके से, वो गलत है. लेट्स से कि मेरा होटल का बुकिंग कल से शुरू होता है, और होटल की ये पॉलिसी है कि 24 आवर्स से पहले कैंसिलेशंस अलाउड नहीं हैं, तो फिर तो मेरे पैसे गए ना. तो आप कुछ यूनिक और डिफरेंट तो नहीं कर पाएंगे. बट हो सकता है उसमें कुछ आपको कॉस्ट डिफरेंस लगा हो सकता है वो 65 आपको लास्ट में मिला, बट वो 70,000 का हो सकता है. अब उसमें कुछ चेंजेस मांगे हो कि इसको नहीं, इसको ब्रिंग डाउन टू 65,000. बुकिंग से पहले हाँ, बुकिंग से पहले तो कोई भी चेंज कर सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी एक कोई प्रॉब्लम है नहीं जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. तो मैं उस रीजन से मुझे इसमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इस बिजनेस में. मैं आपका इंजन नहीं बन सकता. थैंक यू सर. जो अभी है आपका जो स्टेट है बिजनेस का, उसे देखकर ऐसे लग रहा कि क्लैरिटी नहीं है और एक क्लियर बिजनेस प्लान नहीं है. तो इस वजह से मैं आपकी एंजल इस टाइम पे नहीं बन सकती. बट आई डू विश यू द वेरी बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक्स फॉर द फीडबैक. हमें काफी कुछ सीखने को मिला, एंड वी विल डेफिनेटली टेक दिस लर्निंग. एंजल्स का कहना है कि आई यात्रा की सर्विसेज किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं लाता, लेकिन आई यात्रा के फाउंडर्स ने ये फीडबैक एक पॉजिटिव अप्रोच से एक्सेप्ट किया है. वी विश देम ऑल द बेस्ट. काफी कुछ सीखने को मिला, फीडबैक्स मिले. शायद हम कुछ चीजों में अपनी बात राइट तरीके से समझा नहीं पाए, बट फीडबैक टेकन. सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए. डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड विल बाउंस बैक विथ मोर प्रिपरेशन. अगर आप भी प्रीतीश एंड ऐश्वर्या की कंपनी आई यात्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website indianangels.com. हमारे तीसरे पिचर है शाहनवाज राव और दिलशाद, जो लेकर आए हैं ट्रिगो इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी जो डिलीवरी बॉयज के लिए डिजाइन की गई है. एक्चुअली अभी जो हमारा बिजनेस है वो बूट स्ट्रैप्ड है. सारा हमने खुद से स्क्रैप से उसको बिल्ड किया है, और अभी हम एक स्टेज पे हैं जहाँ पे हमने समझा है कि बिजनेस को कैसे करना है, उसको ग्रो करना है. अभी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड है, तो इससे हमें स्केल मिलेगा
फास्टली हम स्केल कर पाएंगे बिजनेस को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट फंड। हाय एंजल्स, माय नेम इज शाहनवाज राव। हेलो एंजल्स, मेरा नाम दिलशाद। हम लोग फाउंडर्स हैं ट्रिगो इलेक्ट्रिक के। सो एंजल्स, आपने कभी ना कभी ई कॉमर्स से शॉपिंग की होगी। कुछ भी हमें चाहिए होता है, हम जस्ट फ़ोन निकाल के ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो जाता है। सो आपने कभी इस पर ध्यान दिया हो तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो बंदा ऑर्डर लेके आपके पास आ रहा है, सो उसकी अर्निंग क्या होती है, वो उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। सो वो लोग कैसे बाइक, पेट्रोल बाइक से मोस्टली डिलीवरीज होती हैं। सो उनको बाइक परचेज करनी होती है, उसके लिए EMI देनी होती है, उनको लोन अप्रूवल चाहिए होते हैं, और इन लोगों के इतने अच्छे सिविल नहीं होते तो सबको मिल भी नहीं पाती है। दूसरी साइड इसका ये होता है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल यूज़ होता है इसमें, तो इसका कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो हमारा CO2 वगैरह इससे बढ़ जाता है। सो उसके लिए हम सब सॉल्यूशन लेके आए ट्रिगो इलेक्ट्रिक में। सो हमने क्या किया, हम इसको पेट्रोल बाइक को रिमूव करके इसको इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। सो इससे क्या होता है कि जो कार्बन एमिशन है वो लो हो जाता है, और जो तो राइडर है उसको कोई सिविल की या उसको मतलब कोई EMI की टेंशन नहीं होती। वो जस्ट आता है, जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वो ज्वाइन कर सकता है एज ए डिलीवरी राइडर। इसी को हम आगे स्केल करने के लिए आपके पास में आए हैं। 50 लाख की फंडिंग लेकर के और 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में। ट्रिगो इलेक्ट्रिक ने दिया एक बहुत ही पावरफुल पिच, सिंपल पर जेन्युइन। जहां मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एग्रेसिवली बढ़ रही है, क्या ट्रिगो इलेक्ट्रिक अपनी जगह बना पाएगा? तो ये आइडिया कैसे आया, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। हमने एक रिक्रूटमेंट फर्म स्टार्ट की, और साथ के साथ हम लोग देखते रहे कि हमें आगे किस बड़े आइडिया पे काम करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है इसको। तो जब हम देख रहे थे तो इसमें हमने देखा कि ई कॉमर्स में भी बूम आ रखा है और इसकी प्रोजेक्शंस भी बहुत अच्छी हैं आगे फ्यूचर में। देन हमने देखा कि अभी जो ज़्यादातर डिलीवरीज हो रही हैं वो पेट्रोल बाइक से हो रही हैं, तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से, क्योंकि EV भी अभी बूम पर है, और वहीं से ये आइडिया आ गया और हमने स्टार्ट कर दिया लास्ट। कौन कौन से डिलीवरी पार्टनर्स के साथ अभी तक एसोसिएटेड हुए हो? सो अभी हम लोग एसोसिएटेड हैं बिग बास्केट के साथ में, जियो मार्ट के साथ में, जेप्टो के साथ में, जोमेटो के साथ में, और भी हमने और लोगों के साथ में पायलट किए हुए और एग्रीमेंट हमने किए हुए, और अभी हम लोग NCR मार्केट में सर्व कर रहे हैं। आप लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कैसे डिवाइडेड हैं और इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का? ओके, सो एक्चुअली जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं एज ए CEO काम करता हूँ, तो मेरा काम होता है क्लाइंट लेके आना, इन्वेस्टर रिलेशंस, ये सब मेरे काम है, और दिलसाद ऑपरेशन देखता हूँ। मुझे ये समझना है कि आपकी जो वो कोलैबोरेशन है जोमेटो के साथ हो या बिग बास्केट के साथ हो, जब ये लोग डिलीवरी पार्टनर्स ढूंढते हैं तो बाइक तो उनका खुद का होता है ना, कंपनी का नहीं होता है। सो एक्चुअली अभी जो होता है, अभी के सिनेरियो में बाइक उनका होता है, पेट्रोल बाइक होता है। बट अभी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट EV पुश करना चाह रही है, और उन्होंने इनको मतलब फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट ई कॉमर्स कंपनीज को कि आप ट्रांसफॉर्म करो इलेक्ट्रिक में। तो पार्ट टू स्केलेबिलिटी क्या है? एक्चुअली पाथ ऑफ स्केलेबिलिटी हमारा यही है कि हमारे पास में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास में नहीं है, हमें सप्लाई बढ़ानी है। इन्वेंट्री का आपका इन्वेस्टमेंट कितना गया है? सो एक्चुअली अभी जो हम व्हीकल होते हैं उसको मोस्टली लीज पे लेते हैं हम, एक टर्म होती है लीज टू ओन। आपका लीजिंग प्रोवाइडर कौन है? मोस्टली एक है सन मोबिलिटी, वहाँ से ज़्यादा व्हीकल आते हैं। सन मोबिलिटी से ले रहे हो आप? यस। अभी क्या है आपका यूनिट? अगर मैं यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो अगर रेंटर की मैं बात करूँ, तो अभी हम लोग 4500 के रेंट पे देते हैं, तो उसमें हमारा 25% मार्जिन होता है। 25%? यस। और अगर मैं बात करूँ लास्ट माइल की, तो उसमें जो पर व्हीकल रेवेन्यू निकल के आता है, जो हमने पायलट्स किए इन कंपनीज के साथ में, तो वो हमारा मोर देन 20,000 पर व्हीकल आ रहा है, तो उसमें हमारा ग्रोस मार्जिन पर बाइक अराउंड 6,000 बन जाता है। दिलशाद भाई, तो ऑपरेशन चलाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तो आपके हब्स कहाँ पे हैं, कैसे उसको मैनेज करते हो, एक वो उस पर कुछ बताएं। एक्चुअली अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्कशॉप है, एक ऑफिस है और एक वर्कशॉप है। जो हमारा स्कूटर होता है उसको स्कूटर, हेलमेट, टी-शर्ट वन टाइम में उसको दे देते हैं राइडर्स को। स्कूटर के अंदर GPS लगा के सब कुछ प्रॉपर देते हैं। ठीक, समझिए। अब मैं आपका काम समझ गया। आपका काम है नजर रखना कि कंपनी में सब कुछ अच्छे से चले। हाँ। 50 लाख का फंडरेज आप करना चाह रहे हैं यहाँ से, इससे आप ज्यादा गाड़ियाँ लीज करेंगे या फिर आप खुद का छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, लीज करेंगे। ओनली लीज करेंगे। आपके धंधे का यूनिट इकोनॉमिक्स समझाइए, मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर यू क्या है, रेवेन्यू? एक्चुअली हमारे इसमें दो मॉडल होते हैं। एक तो हमारा होता है हमने केवल व्हीकल को रेंट किया, तो अगर मैं बात करूँ जोमेटो की, तो वहाँ पे हमारा व्हीकल केवल रेंट पे जाता है, तो वहाँ पे फिक्स रेंट हो गया मंथली 4500 रुपीज। और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ व्हीकल? उसमें हमारा जो कॉस्ट आता है अभी हमारा 3300 रुपये पर मंथ है। तो एक तो ये आपका क्लियर हो गया, आपका 3300 रुपये का कॉस्ट है, 4500 रुपये आपको मिल जाता है उस पे, तो 1200 रुपये के आसपास का धंधा आपका बन रहा है यहाँ पे। हाँ,
और अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे ना, जिसपे आप राइडर प्लस बाइक दोनों दे रहे हो, उसमें पर किलोमीटर आपको कितना रुपया मिलता है? उन्होंने एवरेज वहाँ पे पर व्हीकल हमारा जो रेवेन्यू बनता है, जो कंपनी में पे करती है कोई भी ई कॉमर्स कंपनी, तो वो हमारा 21,000 के अप्रोक्स में बनता है। देन हम उसमें 18,000 राइडर को देते हैं, 3,000 हमारा एज ए कमीशन हो जाता है। फिर उस 18 में से भी हम लोग 3,000 एज ए रेंट ले लेते हैं, तो राइडर को जो एक्चुअल में जाता है वो 15,000 जाता है, तो हमारा 6,000 ग्रोस मार्जिन हो जाता है हमारा। पिछले 3 महीनों का एक बार आप रेवेन्यू बताइए। तो अभी जो हमारा रेवेन्यू है वो मंथली 7.5 लाख के अप्रोक्स चल रहा है। सारे खर्चे काट के? नहीं, सारे खर्चे टोटल काट हमारा के रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें 20 ग्रोस रेवेन्यू जो उसमें आपका आप प्रॉफिटेबल हो या कोई बर्न हो रहा है? तो ब्रेक इवन अभी हमारा है। ट्रिगो इलेक्ट्रिक का बिजनेस अभी भी ब्रेक इवन स्टेज पर है। क्या एंजल्स उनके इस ड्रीम को सपोर्ट करेंगे? तो प्रोजेक्शन, नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन के बारे में बताइए। तो एक्चुअली प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्शन है फ्लीट साइज को 1000 तक लेके जाने का, और जब हम 1000 व्हीकल पर कर देंगे और लास्ट माइल में अगर हम उसको चलाएंगे तो हमारा जो रेवेन्यू हो जाएगा वो अराउंड मंथली का मोर देन 1.5 CR हो जाएगा वो। ओके, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। ये जो स्पेस है ये काफ़ी ग्रो करने वाला है, बहुत वाइबल सेक्टर है, लेकिन इसमें ऐसे लग रहा है कि और बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले हैं, और आप जो पिच कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ यूनिक डिफरेंशिएटेड नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैं आपकी एंजल नहीं बन। मैं आपका एंजल नहीं बन सकता, और मैं इसका रीजन बताना चाहता हूँ। इट इज़ अ वेरी ऑपरेशनल हैवी बिजनेस, राइट। और मुझे पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेशनल हैवी होते हैं, बट उसको स्केल करना, और आपका जो अभी प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें कि आप सब लीजिंग कर रहे हो, उसमें यू विल बिल्ड अ गुड बिजनेस एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप लोग ऑपरेशनली एक अच्छा बिजनेस बनाओगे। बट करंटली जब भी आप इन्वेस्टमेंट देखते हो, स्केल ऑफ बिजनेस देखते हो, कितना स्केल कर सकता है, तो उस रीजन से मैं आपका आज एंजल नहीं बन पाऊंगा। एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नाम बता सकता हूँ किसके साथ में एग्रीमेंट किए हुए हैं, बट उसकी टर्म में अभी शेयर नहीं कर सकते हैं। और उस एग्रीमेंट में वो आपसे लेंगे ही, या आप एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है, या काफी लोगों से कर सकते हैं, कैसे है वो? तो एक्चुअली एग्रीमेंट एक्सक्लूसिव नहीं है, बट मार्केट डिमांड इतनी है कि हमारे पास सप्लाई नहीं, तो हमें कमी आएगी नहीं डिमांड की। एक्चुअली सर हम लोगों ने ज़ेप्टो, बिग बास्केट, इन सब के साथ काम कर लिया है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया है, लेकिन हमने खुद को जिंदा रखने के लिए स्कूटर्स को रेंट पे देना स्टार्ट किया है, ताकि ऑपरेशन कॉस्ट बची रहे। तो अभी जो फंड्स आप मांग रहे हो 50 लाख, वो आप किस में यूज करोगे? तो अभी मतलब मोस्टली जो फंड हमारा जाएगा वो व्हीकल की क्वांटिटी बढ़ाने पे ही जाएगा। मोर देन 50% हमारा उसी में खर्च होना है। और ओनरशिप का क्या परसेंटेज है? 50-50% है दोनों का। 50-50। यस। ये देखो, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। ओके। ऑफिशियली आपकी एंजल नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं आपको आउटसाइड ऑफ दिस परव्यू सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में बहुत ज्यादा उम्मीद और आपके दिल में बहुत बड़ी जिद दिख रही है। एंड आप लोग दिल्ली एनसीआर में हो, मैं भी वहीं पर बेस्ड हूँ, हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपका एंजल बनना चाहूंगा। आई वांट यू टू व्यू मी एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सो आई वुड लाइक टू ऑफर टू यू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 lakhs और a 12% शेयर इन योर कंपनी। ओके। इन एडिशन, आपको अगर फंड्स की जरूरत है, आई कैन ऑफर यू अनदर 30-40 lakhs, okay, up to 40 lakhs, line of credit, term loan at 10% interest rate. I really want to come in, support you guys. Okay. But I don't think I can come in at a 20 crore valuation. Okay. I can at max do a 20 lakh at about a 3 crore valuation. I will not be able to get the strategic expertise which Ajinkya can bring, right, from a OEM perspective. But what I definitely can bring in is help you solve for your financial needs. मेरा ऑफर फाइनल है, मैं आपका एंजल बनना चाहता हूँ। मैंने आपको ऑफर दे दिया है, अब डिसीजन आपके ऊपर। तो एक्चुअली हमारे पास में ऑलरेडी ऑफर है 20 CR की वैल्यूएशन पे, तो इतना नीचे तो हम नहीं जा सकते, 20 से 3 पे जाएं। बट सर हमें दिख रहा है आप दोनों लोग हमारे लिए वैल्यू ऐड करेंगे, और आपसे कुछ ज़्यादा मतलब वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि आप OEM में तो टेक्निकल सपोर्ट और सब वहाँ से मिल सकता है। बट सर उतना नीचे हम लोग नहीं जा सकते, बट आपको फिर भी हमें कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, तो हम उसके लिए आपको सर 15 CR पे कर सकते हैं। कितने? 15 CR वैल्यूएशन पे। मैं अपना वर्डिक्ट बता देता हूँ, मैं इस वैल्यू पे आपका एंजल नहीं बन सकता। आपका सर लास्ट क्या होगा? मेरा मैं निगोशिएट नहीं करता, ये निगोशिएशन का गेम नहीं है। मेरा एक ही ऑफर फाइनल ऑफर है,
इस वैल्यूएशन पे मैं आपका एंजल नहीं बन सकता। ऑल द बेस्ट। तो इतना मैं वैल्यूएशन तो आपको नहीं दे पाऊंगा। सर वो कैप अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ। ओके। पर मैं 3 करोड़ बोल रहा हूँ, आप 15 बोल रहे हो, ये बहुत बड़ा गैप है। आप एक रीजनेबल गैप हम मुझे बताइए, तो मैं सोच के आपको हाँ या ना बोलूंगा। आपके लिए सर लास्ट 10 करोड़ हो सकता है वैल्यूएशन। 10 करोड़ पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं अभी मत अभी सॉरी मत बोलो भाई। पता आप है, बहुत कॉम्प्लीमेंट है आप लोग कर सकते हो साथ में मिलके। इसीलिए डिस्काउंट 10%। चलो फाइनल 7.5 पे क्लोज करेंगे। I have doubled my ask only because I see that you want to do this deal. 7.5 final offer. No, but offer is very good. 40 lakhs. Close it. ये नंबर भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सर, डील करते हैं। Oh, thank you for your support. Very good. Congratulations. Very good deal. काफी डिस्कशन के बाद ट्रिगो इलेक्ट्रिक को मिला हमारे एंजल्स का सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। वी कांग्रेचुलेट देम। एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडिंग थी, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग है। बिजनेस को हमें स्केल करना है, तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बिजनेस को स्केल करने में। और जो हमारे एंजल्स आए हैं वो एक OEM है, तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि वो थोड़ा और फास्ट होगा। हमारे ऑर्डर जल्दी जाएंगे, जल्दी सप्लाई होगी, जल्दी सर्विस होगी, तो ओवरऑल काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अगर आप भी शाहनवाज एंड दिलशाद की कंपनी ट्रिगो इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website indianangels.com. ईज माई ट्रिप पर टिकट सबसे सस्ते होते हैं, क्योंकि वो कोई कन्वीनियंस फी चार्ज नहीं करती और मेडिकल ग्राउंड्स पर फुल रिफंड भी देते हैं। टाइल्स, आपको तो वर्ल्ड फेमस फ्लोरिंग लगाना चाहिए। आखिर आपका स्टाइल वर्ल्ड फेमस है। ऐसे इटालियन मार्बल, इंग्लिश ओक फ्लोरिंग, एग्जैक्टली। सोमानी टाइल्स में ये सब फिनिश है। और जैसे कि मेरा वर्ल्ड फेमस स्टाइल देसी है, ऐसे ही है सोमानी टाइल। स्टाइल और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास, पर जमीन से जुड़ा। एक आइडिया है, आपको ना सोमानी टाइल्स लगानी चाहिए। गुड आइडिया। सोमानी टाइल्स, जमीन से जुड़े। कभी सोचो उनके बारे में जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर गौर से देखो तो उनका भी अपना एक किस्सा है। कौन है ये और क्या है ये? घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, रंग, गाड़ी, चश्मा और जाने क्या क्या, ये सब हमारी पसंदीदा चीजें कौन बनाता है? जल्द ही देखिए कैसे बनता है। जियो सिनेमा पर